Hello students and all the learners. Here we are again for the learning of Android programming language, and here we will go for the learning. So get ready for the learning of the Android. Hello and good afternoon students. We are here again about the learning of the Android programming. So हमने एंड्रॉयड के बारे में अभी तक ये सब पढ़ चुके हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड का डेवलपमेंट किसने किया, एंड्रॉयड को यूज कैसे किया जाता है, एंड्रॉयड का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड के बेसिक फीचर्स, एंड्रॉयड की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि एंड्रॉयड पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द न्यू पीपीटीज. What is the Android programming and its basic introduction and overall all the thing about Androids. So let's start. Here in the first and second lecture, we have learned about the Android programming. We have seen our syllabus, we have seen our course outcomes, we have seen our contents of the Android programming, what is the Android and basically how we can use the Android and why we have to use Android programming, and introduction to Android, Android history, versions of Android, architecture of Android, features of Android, Android for developers, and advantages and disadvantages of Android programming. So here we can continue. For the introduction, the history of Android is the most important part. Why we use the Android? It is also the most important part. What are the features of Android and applications of Android programming and Android development? We can see Android programming and Android development. So we can start. I have tell about the this slide. I think it has covered overall. The Android is not a name of mobile or an app. So we can see here, Android is basically, it is an operating system, not a mobile device name or not a Android app name. It is basically a operating system which is used for the touchscreen mobile devices and the Windows system. You know, this slide we have already completed, so we can continue. Here we can see what is the summary of Android programming. Here is the basic summary about the Android programming. So what is the developer company of the Android? So we can say Google. The Google is the company of Android development programming. In which language it was written? It was written in Java. Basically the source code जो Android का है वो Java में लिखा हुआ रहता है ना, and जो बेस कोड बोल सकते हैं हम जिसे, वो Java डेवलप्ड होता है. जैसे कि Java में अपन पाथ देते हैं, ऐसे ही Android में हमें पाथ देना होता है, क्रिएट करना होता है. Third one is the source model. What is the source model of Android programming? It is a open source model. Simply, we can say the Android is a open source model. ओपन सोर्स मॉडल से आप क्या समझते हैं? ओपन सोर्स मॉडल मीन्स कि एंड्रॉइड जो है वो बेसिकली सबके लिए अवेलेबल है, इसके लिए किसी की कॉपीराइट की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें अपने को कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना. इसकी जो बेसिकली एंड्रॉइड की वेबसाइट है android.com, इसमें से जाके ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो हमें इसे बेसिकली किसी कॉपीराइट की जरूरत नहीं पड़ती. इसका सोर्स कोड जो होता है वो ओपन होता है. इट मीन्स आप इसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो इसका सोर्स कोड इसके साथ ही ट्रांसफर होता है. आपको अलग से
कोई भी सोर्स कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। इट मीन्स इसके सारे जो फीचर्स होंगे वो इसके साथ ही ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यदि आप एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं और यदि आपने अपने एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट किया, ठीक है, यदि आपने अपने एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट किया, अब आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड के मोबाइल पे भी आपका अपडेटेड एंड्रॉइड पहुंच जाए, उसको भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट मिले। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल से यदि अपना सेटअप अपने दोस्त के मोबाइल पे ट्रांसफर करते हैं तो इसके साथ एंड्रॉइड के बेसिक फीचर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। इट मींस आपने जो भी वर्जन अपडेट किया है, जो भी फैसिलिटीज अपडेट की हैं अपने मोबाइल पे, वो सारी आपके फ्रेंड के मोबाइल पे भी अपडेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, है ना। ओके, सो इन द नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सी वर्किंग स्टेटस। एंड्रॉइड वर्किंग स्टेटस मीन्स सिंपल कि इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है। तो इट इज ओपन सोर्स एंड अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स it means it can be installed in, can be downloaded in any system or any mobile or any touch screen devices. Simple, you know, it can be easily installed by the website android.com and available in 100+ languages. आपने देखा होगा कि जब आप अपना मोबाइल सिस्टम या मोबाइल यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे जब आप सेटिंग करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय या मोबाइल में जब नया मोबाइल आता है तो आप उसकी सेटिंग अपडेट करते हैं और उसमें आप कोई भी अपना लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हैं। वो एक आपको ऑप्शन देता है लैंग्वेज सिलेक्शन का, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आपको अवेलेबल मिलती हैं, लेकिन आप यदि जिस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसे सिलेक्ट नहीं करोगे, राइट। और यदि आप फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कोलकाता से हैं एंड आप अपने मोबाइल को अपडेट कर रहे हैं या आपने नया मोबाइल लिया है, आप उसकी बेसिक जनरल सेटिंग्स को अपडेट कर रहे हैं। उसमें आपने सेटिंग्स में जब उसने लैंग्वेज का ऑप्शन मांगा तो आप उसमें लैंग्वेज के ऑप्शन में क्या लिखेंगे, बांग्ला, राइट। या फिर बोल सकते हैं कि आप एक कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वो इजीली कंफर्टेबल लैंग्वेज है, तो आप बांग्ला सिलेक्ट करेंगे और आपका मोबाइल बांग्ला में ऑपरेट होने लगेगा। एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू बांग्ला, है ना। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये 100 और उससे ज्यादा लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, जिससे कि आप अपने मोबाइल या अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी, android.com। इट मीन्स हम android.com पे जाके इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस, किसी भी मोबाइल डिवाइसेस में इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने यहाँ पे एंड्रॉइड के बारे में सीखा, एक बेसिक समरी यहाँ पे हमने इस लेक्चर में देखी है। आप यदि वाइवा के लिए जा रहे हो या फिर बेसिकली आपको एक बोलना चाहिए कि एक हल्का सा नॉलेज एंड्रॉइड का जो है वो इस लेक्चर में या इन पॉइंट्स में आपको मिल सकता है ना। इट इज द की पॉइंट्स, मतलब किसी भी चीज के की पॉइंट्स होते हैं ना, वो एंड्रॉइड के की पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो हैं 6 पॉइंट्स, ये एंड्रॉइड के की पॉइंट्स है। जैसे कि आपको कोई बोले कि आपकी की पॉइंट्स क्या हैं, तो आप बोल दोगे कि मेरे मम्मी का नाम ये है, आप अपने कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताओगे जिससे आपका क्या हो सके, इंट्रोडक्शन हो सके, आपकी आइडेंटिफाई हो सके कि आप क्या हो, आप किसके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स कौन है, आप किस शहर से बिलोंग कर सकते हो, बेसिक ये की पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसका क्या की पॉइंट्स होते हैं, डेवलपर कंपनी, व्हाट इज अ डेवलपर कंपनी, गूगल ने ही इसे डेवलप किया है, रिटन इन जावा, इसे जावा में सोर्स कोड में जनरेट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसकी बेसिक जो बिहाइंड लैंग्वेज है सोर्स कोड में वो जावा यूज होती है। नेक्स्ट, सोर्स मॉडल ओपन,
because it is an open source model and available to all. This is the connected sentence. ओके तो आप इसे ओपन इसलिए बोलोगे क्योंकि ये सभी के लिए अवेलेबल है नेट पे, कोई भी इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकता है। इसके बाद वर्किंग स्टेटस क्या है, अवेलेबल टू ऑल, मतलब कोई भी इसे इजीली इंस्टॉल करके यूज कर सकता है। अवेलेबल इन 100+ लैंग्वेजेस, इट मींस ये 100 या उससे ज्यादा लैंग्वेजेस में भी यूज हो सकती है ना। यानी कि आपको इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन, बहुत सारी चीजों के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिससे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या होगी, android.com। इट मीन्स android.com पे जाके आप इसके सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख सकते हो, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्यों हमें इसे यूज करना है, आप ये भी देख सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली एक समरी जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो इस स्लाइड में कवर्ड हो गई है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर the history of the Android. Okay, so we will see in the next lecture the history of the Android, from where the Android was developed, है ना। Basically everyone wants to know कि कोई भी चीज कहाँ से आई, why, when, ये चीज हर कोई जानना चाहता है कि ये लैंग्वेज कहाँ से आई, इसे किसने डेवलप किया, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। So thank you so much for the learning of the Android programming. Stay tuned and keep learning with the SIRT Bhopal. Thank you and good day.